Good evening and welcome everyone to this live session. So this is the session in which I'll wind up this financial market as a topic. Capital market का एक run through करेंगे quickly. The PPTs that were left around 100 odd PPT slides are there. So I'll just take you through these slides. कोई doubt है तो आप लोग पूछ सकते हो. उसके बाद we will start with the banking as a topic, right? In the banking topic we will be covering insolvency and bankruptcy code, etc. So this is there now. Capital market deals in medium and long term securities such as equity shares and debentures. ये सबको clear है? Please keep on saying yes or no. Telegram पे भी if you have any doubt which is missed out on the on this platform part, ठीक है? You can send across that doubt on the Telegram. I am keeping an eye on the Telegram messages as well. In the rush of messages on this live chat, if I end up skipping on your this message doubt, you can send the same on the Telegram group made for economy or integrated GS students. Capital market securities are considered liquid investments because they are marketable on stock exchanges. However, a share may not be actively traded, that is, it may not easily find a buyer. Now, all these things are there. Money market instruments, on the other hand, enjoy a higher degree of liquidity as there is formal arrangement, right? Is the class streaming properly? I am keeping an eye on the Telegram also, guys. जिसको कोई doubt है तो पूछ सकते हो. You had 3 days, so it was your duty to go through all this. CEO, okay, great. Now I understand why capital, ये सारा कुछ ठीक है. Capital ये हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं या फिर ये sovereign bonds क्या होती हैं, gilt edge securities क्या होती हैं. This is how it works. In order to bridge the fiscal deficit, government uses that. ठीक है, no doubt in this. Equity shares, dilution, FPO, going for public listing, corporate bond market, debenture, not so developed. New ways of finance raising, startup funding, venture capital firms, ICICI venture. ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था briefly as to how does it work. ये सारा कुछ हो गया था. Green shoe option was also explained. Private limited to public limited. If a company goes for public issue of shares, if Anil Ambani issues the shares to its relatives, ठीक है, अगर अनिल अंबानी अपने रिलेटिव्स को शेयर्स इशू करता है तो वो पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है. बट अगर वो कंपनी पब्लिक एट लार्ज को शेयर्स इशू कर देती है, देन दैट कंपनी बिकम्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है, तो फिर वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी. ओके संजीव, आई डू अंडरस्टैंड. मीनिंग ऑफ द वर्ड लिमिटेड, इट सिग्निफाइज दैट द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, commercial bill and commercial paper. Yes, I am going to answer your doubt, Nancy. Commercial bill and commercial paper, no collateral, सिर्फ सिक्योरिटी डिफरेंस है. yes, मैंने बताया था कमर्शियल बिल के लिए यू हैव टू हैव सम कोलैटरल. मैंने बताई थी ये चीज. सारी क्लासेस कवर करो नैन्सी. आई हैड एक्सप्लेन दिस थिंग कि कमर्शियल बिल के लिए हमें ये करना होगा, राइट? It signifies that the liability of the shareholders is limited to the extent of share price of the company only. It means that in case of any loss, company's shareholders' private property cannot be sold to pay the debt of the company. Actual performance of the company is bad, still the price of the share is rising. Overbuying may increase the price, speculation. ठीक है, ये सारा कुछ क्लियर है. बोलो घर चले जाएं, ये 11 बजेंगे. क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें?
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, कंपनीज एक्चुअल परफॉर्मेंस, इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस एटसेट्रा, ये सारा कुछ है। रेंटल, ये हमने एग्जाम्पल लिया था वेरी फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड लेक्चर में ये सारी चीजें समझाई थी, इसको तो कोई जरूरत नहीं है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड क्या होते हैं, ये सब चीजें एक्सप्लेन करी गई थी, राइट। सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स एंड अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर पेड फर्स्ट बिकॉज देयर मनी इज गारंटीड और सिक्योर्ड बाय कोलैटरल और अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इवोल्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये क्या हुआ, ये तुम्हारा काम है पढ़ना, ठीक है। और ये कुछ कुछ कमिटीज हैं विच वी विल अंडरस्टैंड वंस वी वुड हैव अंडरस्टूड, वंस वी वुड हैव रेड एवरीथिंग। जब सारा कुछ हो जाएगा तब ये चीजें होंगी, ठीक है। सालसाबिल, डिड यू मिस एनी क्लास? मैंने उस अगली क्लास में उसके अगले दिन आई हैड क्लैरिफाइड दिस थिंग कि इसका मतलब क्या होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नेगोशिएबल, ट्रेडेबल, ये सारा डिफरेंस उसके अगले दिन समझाया था, ठीक है। नेगोशिएबल इज विच यू कैन सेल टू अदर पार्टी, राइट। बेयरेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट एंड दिस नॉन नेगोशिएबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने बताया था। बेयरर इज जिसपे नेम लिखा होता है, ठीक है। नेगोशिएबल इज विच इज सेलेबल, एक दूसरे को एक्सचेंज होते रहता है वो, ठीक है। द मेजर डिफरेंस इज बिटवीन बेयरर एंड नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इज विच यू कैन सेल टू समबडी एल्स, राइट। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नेगोशिएबल, it is written correctly in the PPT, all right. Role of Clearing Corporation of India Limited, and what's this stamp duty reform mean? Role of Clearing Corporation of India Limited यही है कि बिल्स वगैरह जो चेक क्लियर होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड चेक्स को क्लियर करता है, ठीक है। चेक्स जो हमारे रहते हैं ना उनको क्लियर करता है, और उसमें क्या होता है कि स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगती हैं, तो वो स्टैंप ड्यूटी वगैरह को रिड्यूस करने को कहा जा रहा है, राइट। ऑलराइट, मतलब जो क्लियरिंग का पार्ट रहता है, जैसे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो दूसरा नेगोशिएबल, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी एक बैंक ने दूसरे को इशू किया, तो वो आगे क्या करेगा, राइट। मतलब उसको डिस्काउंट कौन करेगा। इफ यू वर देयर इन द डिस्काउंटिंग क्लास, जिसमें हमने डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ा था। इज द स्ट्रीम ऑफलाइन नाउ? क्लियर है? कोई डाउट? ऑलराइट, तो पोस्ट लिबरलाइजेशन ये सारा कुछ ना, ये तुम्हारे लिए दे रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट अलाउड आईसीआईसीआई टू गो फॉर अ रिवर्स मर्जर व्हेन एन एल्डर एंटरप्राइज इज मर्ज्ड विद अ यंगर वन, ठीक है। एल्डर एंटरप्राइज यंगर में मर्ज होता है विद द आईसीआईसीआई, यानी कि आईसीआईसीआई जो पेरेंट कंपनी थी वो छोटी कंपनी आईसीआईसीआई बैंक सब्सिडियरी कंपनी ने एक्वायर कर ली, बेटे ने बाप को एक्वायर कर लिया एक वैसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स मर्जर, ऑलराइट। क्लियर है?
पढ़ो इसको अच्छे से एक बार. Banking PPT will be shared in some time. So this is there. Presently, there are only 4 financial institutions operating in the country as All India Financial Institutions. ये सारी institutions हैं. Then investment institutions, again very easy. Indian Mutual Fund Industry, UTI was converted into mutual fund company. और LIC is now public insurance. LIC में privatization चल रही है जो कि हम बाद में देखेंगे. State level financial institutions कौन सी हैं? State financial corporations, right? SIDBI, SIDC, State Industrial Development Corporations. कितनों ने पढ़ा है ये? ME लिखो, मी, जितनों ने पढ़ा है, ठीक है. लिखो, दूसरे वाले लिखो मी नॉट. मी और मी नॉट में चलेगा ये काम. फटाफट से करो. Some SIDCs also offer a package of developmental services that include technical guidance, assistance in plant location and coordination with other agencies. Right? Now, resources of the state level financial institutions, SFC and SIDC. ये सारा कुछ है. Then coming here, angel investors. ये भी पढ़ लिया हमने. Angel investor होता क्या है, पता क्या है, ठीक है. Entrepreneur जिसके पास में कोई creative idea है. Angel investor एक एंजल, एक परी की तरह उसके बिजनेस में पैसा लगाता है. यूपीएससी इतना ही पूछती है, इससे ज्यादा नहीं पूछती. यूपीएससी वुड नेवर आस्क यू बियॉन्ड दिस. देन वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज. इसको वेंचर कैपिटल कहा जाता है. वेंचर कैपिटल जनरली कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ इन्वेस्टर, जैसे कि ICICI वेंचर कैपिटल. इंडिया में मेंस का एक क्वेश्चन वैसे लिख लो. Why the venture capital firm, why the business of indigenous venture capital firms is not as much as that of foreign venture capital firms? Why the business of मतलब ICICI वेंचर कैपिटल फंड जो है ना, वो उसका बिजनेस इतना नहीं चल रहा जितना फॉरेन वेंचर कैपिटल फर्म्स का चल रहा है, सॉफ्ट बैंक का चल रहा है या औरों का चल रहा है. क्यों? रीजंस आर प्रीटी सिंपल. रीजन यही है कि ये क्या है, माइजरली, ये थोड़ा कंजर्वेटिव, रिस्क एवर्स रहते हैं. जो फॉरेन कैपिटल फर्म्स हैं उनके पास पैसा, उनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है. साइज बड़ा होने की वजह से सेकंड पॉइंट ये बनता है. पहला, दे आर ऑफ अ वेरी लार्ज साइज, 50,000 करोड़, ठीक है. तो वो 200, 300, 500 करोड़ लगा भी देंगे तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता. फेल होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है. हमारे यहाँ पे फंड्स का साइज है 5,000 करोड़. तो इसीलिए दूसरा पॉइंट ये आ जाता है, दीज इंडियन वंस दे बिकम रिस्क एवर्स, राइट. इंडिया वाले जो है वो रिस्क एवर्स हो जाते हैं, ठीक है. क्लियर? However, it doesn't always take a monetary form. It can also be provided in the form of technical or managerial expertise. ये आपको पता. वेंचर कैपिटल जनरली कम्स, ये समझ में आ गया. 2-3 ही पॉइंट है हमारे यहाँ पे. तीसरा पॉइंट लिख लोगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है वेंचर कैपिटल फर्म्स वगैरह के लिए, ठीक है. फ्रेंडली एंड अकोमोडेटिव रेगुलेटरी
framework is absent in India, is missing in India. Long term in the form of monetary, technical and managerial expertise to the startups. स्टार्टअप्स को नर्चर करती है फंडिंग फर्म, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा फंडिंग फर्म का डूबेगा, इसलिए उस पैसे को बचाने के लिए. ऑलराइट, क्लियर? Alright, so this is there. Banking has emerged as a major source of fund for financing the industrial. ये हो गया. Insurance companies after independence, life and non-life insurance businesses were nationalized by the government. Nationalize मतलब सिर्फ सरकार ही वो काम करेगी और कोई वो काम नहीं करेगा. समझ में आया? Only the government will do that job. ठीक है, ये सब होने लगा. बट आफ्टर लिबरलाइजेशन देयर वाज अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो कमेटीज लाई गई. इन कमेटीज को बाद में समझेंगे, क्योंकि पहले बेसिक समझ लेते हैं. कमेटीज बात करती हैं हाई लेवल की. अब मैं अगर कमेटी की बात करने लग जाऊं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना. तो ये एक प्रॉब्लमैटिक साइड है इसकी, इसीलिए. Presently, Indian insurance industry consists of this thing: Indian insurance industry, public sector, life insurance, ये सारा कुछ है. ठीक है. Then so this aspect is there. Clear? Private insurer company, public sector reinsurer, specialized public sector insurer, public sector general insurer, ये सारा कुछ है. Now, securities are financial instruments issued to raise funds. Primary function, ये सारा कुछ हमने देख लिया है गाइस पहले ही. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज न्यू इश्यू मार्केट होती है, इनकी भी इश्यू मार्केट होती है. ठीक है. ओवर द काउंटर, यानी कि एसबीआई की ब्रांच से जाओ और गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लो. दैट्स इट. ऑलराइट. So sorry guys, excuse me. So these things are there, right? अब आते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट. गिल्ट एज्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सेमी गवर्नमेंट मतलब जैसे आईडीबीआई की सिक्योरिटीज बिक रही हैं. आईडीबीआई में गवर्नमेंट का फॉर एग्जांपल 76% शेयर्स हैं. इफ द गवर्नमेंट इज हैविंग ओनली 76%, तो आईडीबीआई को क्या बोलेंगे? 76%. आईडीबीआई को क्या बोलेंगे? सेमी गवर्नमेंट. ठीक है, क्योंकि पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है, इसलिए. राइट. अगर ये लिखा हुआ है प्रीलिम्स में सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस. मेजर थिंग इज बैक्ड बाय आरबीआई. मतलब आरबीआई उसकी एश्योरेंस दे रहा है कि मैं पैसे चुकाऊंगा. ठीक है. कोई और होता तो मान भी नहीं भी मानते. अब अगर एसबीआई खुद बोल रहा है, आरबीआई खुद बोल रहा है, तो फिर दिस इज अ काइंड ऑफ एश्योरेंस. क्लियर? Securities markets are divided into government securities market and industrial securities market. Industrial securities market refers to the market for shares and debentures of old and new companies. Then government securities market for both old and new issues has been on over the counter market where securities of union government and state governments are issued. Over the counter पढ़ लोगे, सिंपल सी चीजें मैंने अच्छे से समझा दिया तुम्हें. मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है ये भी समझा दिया. ठीक है, ये सारा कुछ है. अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, शेयर्स पढ़ लिया, डेट पढ़ लिया. डेरिवेटिव्स हमने ज्यादा नहीं समझा क्योंकि जरूरत नहीं है. ठीक है. फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप नहीं पूछ. आज तक पूरा इतिहास उठा के देख लो. अगर कोई यूपीएससी के इकोनॉमी के उसमें आया भी होगा, बहुत ही बेसिक नेचर का डेरिवेटिव्स होते क्या है. ठीक है. फिर उसके बाद सेविंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स आर जनरली रेज्ड through a range of complex financial products generally called capital market instruments such as shares, debentures, bonds or any other marketable security of a like nature issued by any company. Following are the various types of capital market instruments.
ठीक है, ये सारा कुछ हो गया, एक बार रन थ्रू कर लेते हैं फटाफट. देन प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, आई हैव एक्सप्लेन दिस. नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स. अब मेरे को अपने मकान की हिस्सेदारी तो देनी है, बट मैं पार्किंग की स्पेस नहीं दे सकता. नॉन पार्किंग हिस्से मतलब मैंने फ्लोर बेच दिया है, शेयर्स दे दिए, बट जब मैं अपनी कंपनी के रिमेनिंग शेयर्स के बेसिस पे मेरी शेयर होल्डिंग अपनी कंपनी में ज्यादा रहेगी, उसके बेसिस पे जब मैं कोई फंडामेंटल डिसीजन लेना चाहता हूं कि मेरे को दुबई की मार्केट में मेरी कंपनी जाएगी या नहीं जाएगी, वेदर माय कंपनी वुड वेंचर इनटू दुबई और नॉट, उस केस में मेरे को ये देखना पड़ेगा. उस केस में जिनको मैंने अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दी थी वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं है कि वो मेरे को डिसीजन लेने से रोक सकें. अगर मैंने 10% हिस्सेदारी दी है तो 10% वोटिंग राइट इनके पास हो गए, 90% मेरे पास हैं. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, तुम 10% के प्रॉफिट में हकदार हो, पॉलिसी डिसीजंस मैं लूंगा. क्लियर? शेयर्स बेचे बट बिना वोटिंग राइट्स के बेचे. ऑल राइट. क्लियर है सबको? वोटिंग वाले कुमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? डिड आई एक्सप्लेन दिस कि मैं इस शेयर को, मैं अपने फादर को शेयर बेच रहा हूं, उनको ये बोल रहा हूं कि अगर आपको लगे कि हाँ भाई ठीक है प्रॉफिट हो रहा है तो आप 9% प्रॉफिट में हिस्सा क्यों रखते हो, ठीक है, अब आप इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लो. कुमुलेटिव मतलब द प्रॉफिट विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, प्रॉफिट उसमें इकट्ठा होता रहेगा और एक स्टेज के बाद प्रॉफिट इतना हो जाएगा कि हाँ बढ़िया है, मतलब प्रॉफिट इतना ज्यादा हो गया कि इन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में, क्योंकि ये वफादार हैं जो अपना प्रॉफिट क्यूमुलेट करवा रहे हैं 5 साल के लिए. मेरी कंपनी बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, ठीक है, मैं उसके इक्विटी शेयर्स, मलकियत, हिस्सेदारी किसी के साथ शेयर ही नहीं करता. लेकिन मेरे को एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, मैं उसमें ये कह रहा हूं कि क्या तुम प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाओगे, तुम्हें मैं सिर्फ 9% प्रॉफिट दूंगा, टोटल प्रॉफिट का जो 9% होगा, और वो भी अगर तुम कैश नहीं मांगोगे, मेरी कंपनी में जोड़ते रहोगे, फिर वो प्रॉफिट मैंने डिक्लेयर किया वो कुमुलेट होते गया, और फिर मैं तुम्हें उसके 10 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी दूंगा कि हाँ तुम अब इसको कन्वर्ट कर लो इक्विटी में. समझ रहे हो? मतलब ये हो गया, अगर हम वो हाउस रेंटल प्रॉपर्टी वाले एग्जाम्पल पे जाएं कि मैं तुम्हें किराए पे घर दूंगा क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, और वो भी तुम किराया मुझे देते रहोगे. जब किराया तुम 5 साल बैठ चुके होगे, मेरी घर में किराए पे रह चुके होगे, हर महीने 50,000 दे चुके होगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा जो कुमुलेटिव किराया है वो सबको देखते हुए कि हाँ तुम इतने वफादार हो, मैं तुम्हें अपने फ्लोर बेच दूंगा. समझ में आया? सिंपल सा है ना ये, अच्छा सा है कि हाँ ठीक है. कंपनी फिक्स डिपॉजिट, कंपनी में फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हो. अब किसी ने कल परसों एक डाउट पूछा था, शेयर वारंट्स क्या होते हैं, किसने पूछा था? हु वाज द वन? आई थिंक कोई तुम में से ही कोई नाम था जहां तक मुझे याद है. कल रात में 8-9 बजे पूछा था, मैंने टेलीग्राम पे रिप्लाई किया था, बट देर इज टाइम कॉन्स्ट्रेंट एंड स्पेस कॉन्स्ट्रेंट, मैंने पूरा रिप्लाई नहीं कर पाया था. डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये क्लियर है. डेरिवेटिव, स्वैप, कमोडिटीज, करेंसी एक्सचेंज, ऑल क्लियर? देन कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये भी हो गया था. इक्विटी मार्केट, इक्विटी शेयर्स, अब कोई काम नहीं बचा वैसे तो. कौन सी स्लाइड पे आ गए? 155. कॉमन शेयर सेम है, प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, स्वेट इक्विटी एम्प्लॉइज को दिया जाता है. डिड आई एक्सप्लेन दिस? प्लीज राइट SE यस. स्वेट इक्विटी के लिए यस,
स्वेट इक्विटी होता है जब कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा खून पसीना बहाता है, तो स्वेट मतलब पसीना, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स उनको दिए जाते हैं ताकि वो कंपनी से लॉयल रहें, छोड़ के नहीं जाएं, ठीक है। जैसे HDFC के शेयर्स मैंने बता दिया था ये। देन स्वेट इक्विटी, ये देखो पसीना बहाता हुआ, राइट। तो अब इसको शेयर्स मिल जाएंगे, तो इसको लगेगा कि ओ नो 3 साल तक अगर मैं कंपनी छोड़ूंगा तो मेरे शेयर्स फोरफिट हो जाएंगे। फोरफिट मतलब जब्त हो जाएंगे, कंपनी रख लेगी उन्हें, ठीक है। इसीलिए ये रहता है। ऑलराइट। सो कभी कभी ये शेयर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय की लॉयल्टी को वो करने के लिए, चेक करने के लिए इन शेयर्स को ये बोला जाता है 100 रुपए का शेयर है कि आप 30 रुपीज दो। जरूरी नहीं है कि ये फ्री में दिए जाएं, ठीक है। ये फालतू का है क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड, और जो आजकल भी न्यूज में चल रहे हैं इसको हम बजट के साथ कवर करेंगे। पुरानी चीजें यूपीएससी नहीं पूछती। डिबेंचर एंड बॉन्ड, ठीक है। डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट एंड लार्ज कंपनीज, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, ये भी हो गया था, बॉन्ड भी हो गया। एक मिनट रुको, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यील्ड ऑन बॉन्ड्स आर एक्सप्रेस्ड कॉमनली इन 2 फॉर्म्स। इंटरेस्ट यील्ड, ठीक है, जो रनिंग यील्ड बोलते हैं। रनिंग मतलब टाइम इज रनिंग, एंड जैसे जैसे टाइम का मीटर चल रहा है वैसे वैसे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते चले जा रहा है, इसको रनिंग यील्ड बोला जाता है। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब जब बॉन्ड मैच्योर होगी 10,000 रुपए की, इंटरेस्ट मिलेगा 10%, दैट विल बी टोटल 11,000 रुपीज, ठीक है। ये क्या है कि मैं मैच्योरिटी पे देख रहा हूं कि अगर मैंने किसी से, जतिन वर्मा से किसी ने सेकेंड हैंड बॉन्ड परचेज करी 9,000 रुपीज की, उसको भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि सिक्योरिटी पे लिखा है कि 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पॉइंट इज, इसके लिए यील्ड टू मैच्योरिटी ज्यादा बेनिफिशियल है। कुछ लोग देखते हैं रनिंग यील्ड। रनिंग यील्ड क्यों देखी जाती है? रनिंग यील्ड इसलिए देखी जाती है कि मैं 9,000 रुपए लगाऊंगा, मुझे पता है कि मैं इस बॉन्ड को, इसकी मैच्योरिटी डेट 2030 तक तो नहीं रख सकता, क्योंकि 2025 में मुझे पैसे चाहिए। आई नीड माई दिस मनी फॉर सम पर्सनल रीजन। नाउ दिस बॉन्ड ऑफ 10,000 रुपीज, आई एम गोइंग टू बाय this bond of 10,000 rupees at a price of 9,000 rupees which is prevailing in the bond market, secondary market, जहां से सेकेंड हैंड हम बॉन्ड को खरीद रहे हैं। तो आपने ये बॉन्ड खरीदी जतिन वर्मा से सेकेंड हैंड मार्केट में, आपको ये बॉन्ड रखनी है 2025 तक। आप रनिंग यील्ड में इंटरेस्टेड हो। रनिंग यील्ड में आप क्या चेक करना चाहते हो कि मैं 9,000 रुपए लगा के अगर मुझे 1,000 रुपीज मिलेंगे तो मेरा कितना फायदा होगा। इंटरेस्ट पीरियोडिकली किस किस बॉन्ड पे मिलता है, किसी किसी बॉन्ड पे पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलता है, हर साल 1,000 रुपए मिल जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि 9,000 रुपए में से मुझे, अगर मैं अभी बॉन्ड खरीदता हूं अक्टूबर 2020 में, दिसंबर 2020 में इसकी डेट है, क्या क्या डेट है, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे पैसे। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मैंने 9,000 रुपए लगाए, अब दिसंबर के बाद मैंने कितने लगाए हुए पैसे, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए मुझे अगले साल 12 महीने के बाद 1,000 और मिल जाएंगे। फिर उस 8,000 रुपए पे मैंने एक साल बाद और मिल जाएंगे, 7,000 हो गए, क्योंकि मुझे 1,000 जो मिल गया है वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। रनिंग यील्ड क्यों चेक करते हैं? जो लोग सिर्फ इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्हें कितना पैसा रिटर्न आ जाएगा, वो रनिंग यील्ड देखते हैं। जो लोग मैच्योरिटी तक देखना चाहते हैं वो क्या देखते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब जब ये रिटायर हो जाएगी, सरकार इसके पैसे चुका देगी। समझ में आया? इट ऑल डिपेंड्स कि इन्वेस्टर का प्रेफरेंस क्या है। क्या वो सिर्फ ये देख रहा है हाल फिलहाल की कमाई, तो रनिंग यील्ड। अगर वो ये देख रहा है लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा, ये बॉन्ड का प्राइस 9,000 रुपए से क्या 15,000 होगा, तो वो क्या देखेगा, रिडेम्पशन यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब एक रिलेशन है टाइम पास वाला, दूसरा रिलेशन है शादी वाला। समझ में आया? क्या ये लड़की शादी करेगी तो ठीक है। दूसरे वाले कोई लोग क्या सोचते हैं, टिंडर वाले,
क्या इंटरेस्ट मिलेगा? मिलेगा। समझ में आया? उल्टा एग्जाम्पल है बट समझने के लिए सही है ना। टेम्परेरी रिलेशनशिप एंड परमानेंट रिलेशनशिप का एग्जाम्पल से समझ सकते हो। हाँ, अल्टीमेटली हर रिश्ता मतलब का होता है, ये भी इससे सीख मिल जाती है ना। सॉरी गाइस। ठीक है, प्राइमरी मार्केट्स, बॉन्ड्स, ये सारा कुछ हो गया। सेकेंडरी मार्केट्स इन विच एग्जिस्टिंग और सेकेंड हैंड इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड, ये तो तुम्हें पता ही है, ये बोल बच्चन खुद देखोगे। देन ग्रीन बॉन्ड्स, अब ये नौटंकी है वर्ल्ड की कि कैपिटल फॉर ग्रीन बॉन्ड इज रेज्ड टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स। स्वाति, बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट यील्ड ये है कि मेरे पास पैसे जो हैं 2030 तक के लिए नहीं है, मैं सिर्फ एक स्पेक्युलेटर हूं, मुनाफाखोर हूं, मेरे को मुनाफा कमाना है और चलते बनना है ना। एक तो होता है कि हम ये देखते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे दादाजी ने दी थी, इसको तो मैं रखूंगा लाइफ टाइम, है ना। पोस्ट ऑफिस की सिक्योरिटी वो इमोशनल एंगल है, मुझे मेच्योरिटी तक उसे रखना ही नहीं है। 2030 में वो बहुत अच्छी रिटर्न देगी, लेकिन तब तक के लिए मेरे पास पेशेंस नहीं है। मुझे आज ये देखना है कि मैं 10 साल की उसकी मेच्योरिटी डेट है, लेकिन मैं 5 साल रखूंगा, क्या मुझे 5 साल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके फायदा हो रहा है या कोई LIC की सिक्योरिटी या HDFC की सिक्योरिटी लेके फायदा हो रहा है। लाइफ में हमेशा ट्रेड ऑफ होता है, ठीक है। आप लोग कौन से हो? यील्ड टू मेच्योरिटी वाले लोग हो। UPSC के लिए तुम्हारे पास पेशेंस है। कुछ लोग क्या करते हैं, डबल टाइमिंग करते हैं। डबल टाइमिंग क्या है कि मैं ये देखूं कि मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब के साथ साथ निकला तो ठीक है, नहीं तो 2 साल लगा के छोड़ देंगे, है ना। वो लोग ये देख रहे हैं कि मुनाफा किस में होगा। अब समझ में आया? बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट यील्ड ये है, वो लोग सिर्फ इंटरेस्ट में अच्छे हैं, इसलिए वो ये देख रहे हैं कि अगर वो 9,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उनको कमेंसरेटली किसी और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में इस गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न मिल रही है, या वो गोल्ड में पैसा लगाएं तो ज्यादा मिलेगी, या वो रिलायंस के शेयर्स में लगाएं तो ज्यादा मिलेगी। यील्ड वगैरह कैलकुलेट करने का मतलब ही तब होता है जब हम ये देख रहे हैं कि कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी है, 9,000 रुपए कहीं और लगाएं, कहीं 1,200 रुपए में इंटरेस्ट मिल जाए, तो हम इंटरेस्ट यील्ड देखते हैं, है ना। अब एक किसान को भैंस रखनी है सिर्फ दूध लेने के लिए, दूसरे को भैंस रखनी है क्योंकि वो भैंस बछड़ा देगी, बछड़ा फिर दूध देगा, बड़ा होगा, उसको बेचेंगे। डिफरेंस यहाँ पे बस यही है। अब ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें, आगे चलो। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड हो गया। ये वर्ल्ड बैंक ने इशू करा था 2007 में कि कोई ग्रीन प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए पैसे रेज करने हैं, तो उसके आगे लगा दिया ग्रीन बॉन्ड, बस मजाक हो गया। ठीक है, अब अगर किसी ने कार्बन वाला प्रोजेक्ट लगाना हो तो उसकी बॉन्ड का नाम क्या होगा? ब्लैक बॉन्ड। ऐसा कुछ है नहीं, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ गिमिक प्लेड बाय दी यूरोपियंस और ये वर्ल्ड बैंक वगैरह को। ठीक है, इंडिया में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने पहला बॉन्ड ये इशू किया था। 7th लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट बन गया इंडिया। बहुत ज्यादा ग्रीन बॉन्ड इशू करी जाती है इंडिया में। तो 2016 में सेबी ने फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड रिलीज किया था, गाइडलाइंस वगैरह रिलीज करी थी जनवरी 2016। ये थोड़ा सा रीसेंट है, बस इसको याद रख लेना। फैक्चुअल है तो रट्टा लगाना आपका काम है, राइट। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी, अ बॉन्ड शैल बी कंसीडर्ड ग्रीन बॉन्ड इफ द फंड्स रेज्ड थ्रू इट will be used for renewable and sustainable energy including wind, solar, bio, other resources। बस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहा है, और लेकिन उससे जो पैसे लिए जाएंगे वो थर्मल पावर प्लांट्स में नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड किसने इशू करी थी ये पता होना चाहिए। वैसे तो 4 years for a factual information is too long a period for UPSC to ask a question। ठीक है, तो यूपीएससी इतने पुराने क्वेश्चन फैक्चुअल तो नहीं पूछती क्लाइमेट, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेना। रेक ने जो इशू करी है क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव, ग्रीन बॉन्ड्स को सर्टिफाई करता है कि हाँ वाकई ही जेन्युइनली इस बॉन्ड से जो पैसा रेज किया जाएगा वो किस में इन्वेस्ट किया जाएगा? वो इन्वेस्ट किया जाएगा
ग्रीन प्रोजेक्ट में, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में जो पैसे लगाए जाते हैं, विंड मिल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, ये सब काम का कुछ नहीं। ब्लू बॉन्ड्स, अपकमिंग ईयर विल विटनेस फर्स्ट ब्लू बॉन्ड इशुएंस इन इंडिया, ये हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव, ब्लू बॉन्ड्स is an innovative financial instrument used to raise financing from capital market for projects that support sustainable use of ocean resources। यानी कि ब्लू बॉन्ड्स का पैसा किस में लगाया जाएगा, कहीं अगर फिश स्टॉक जो है ओशन में वो डिप्लीट हो रहा है बहुत फास्ट, ठीक है। अब उसको प्रिजर्व करने के लिए किसी कंपनी ने पैसे लिए और वो कंपनी फिशिंग के बिजनेस में है, लेकिन वो कंपनी कह रही है हम इतने मिलियन स्क्वायर किलो या इतने स्क्वायर किलोमीटर्स में कोई भी फिशिंग डीप सी ट्रॉलर्स के थ्रू, बड़ी बड़ी जो ट्रॉलर्स होती है ना, जो एक साथ ही पता नहीं कितने क्विंटल्स मिलियन टन्स फिश को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिश को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, उन शिप्स को हम इस एरिया में नहीं आने देंगे। उसके बाद जब स्टॉक रेप्लेनिश हो जाएगा फिर वो फिश को बेचा जाएगा और फिर वो पैसे जो बॉन्ड के हैं वो उतार दिए जाएंगे। मजाक, दिस इज अनदर काइंड ऑफ मजाक, समझ रहे हो ना। नौटंकी करने के लिए, अपने पापों को जस्टिफाई करने के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है। ये कंपनीज ऐसा करती हैं कि एक अमली जामा पहनाने के लिए, टू चेंज द परसेप्शन ऑफ द पीपल, कि देखो हम ब्लू बॉन्ड्स में ये फिश को रेप्लेनिश कर रहे हैं, ठीक है। मसाला bonds are rupee denominated bonds issued by Indian entities in the overseas markets to raise funds. As of now, it is being traded only at London Stock Exchange. Masala bonds have been named so by Masala bonds have been named so by International Financial Institution, an investment arm of World Bank, which issues these bonds to raise money for infrastructure projects in India. They protect investors from exchange rate fluctuations as opposed to external commercial borrowings that have to be raised and repaid in dollar. ठीक है। मसाला बॉन्ड्स में क्या है, वैसे तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है उन्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। आई थिंक आई हैवंट एक्सप्लेन्ड दिस अर्लियर। दिस इज इंडिया, ठीक है। अब टाटा ग्रुप को पैसे चाहिए। टाटा ग्रुप ने ये पैसे बोरो करे, कितने, $1 बिलियन, डॉलर 1 बिलियन, ठीक है। अब डॉलर 1 बिलियन जब इन्होंने बोरो करे, ये थे 6300, मान लो कि रुपये का प्राइस था 63 रुपीज फॉर एवरी डॉलर। $1 बिलियन 6300 करोड़ रुपीज हो गए, ठीक है, रुपीज टर्म्स में। टाटा को मिले इतने पैसे, ठीक है। अब जब इनको 5 years आफ्टरवर्ड जब इनको रिडीम करने का टाइम आया तो रुपए की वैल्यू हो गई 67 रुपीज फॉर एवरी डॉलर। टाटा को ये पैसे, पहले क्या होता था, मसाला बॉन्ड जब नहीं होती थी, उनको 67 रुपीज देने पड़ेंगे, $1 मिल जाएगा, ठीक है। 6700 करोड़ रुपीज देंगे तो क्या मिलेगा, $1 बिलियन। मतलब वो जो इंटरेस्ट चुकाया वो अलग, 10% का इस पे इंटरेस्ट चुकाया 630 करोड़ रुपीज, दैट इज सेपरेट। ओवर एंड अबव दैट 400 करोड़ और लग गए। क्यों खरीदी थे ये डॉलर्स, कितने में, जब आए थे तो 6300 करोड़ रुपीज मिले थे, जब ये कन्वर्ट हुए थे। हम टाटा से $1 बिलियन लेके आए, अब कन्वर्ट हुए। अब जब इन्हें रिपे करना है तो ये डॉलर्स में ही रिपे करना होता था। दिस यूज टू क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ वॉलेटिलिटी। अब जो वॉलेटाइल हो गया रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई ना। पहले हमें अपनी पॉकेट से 63 रुपीज निकाल के किसी फिरंगी को देने होते थे, यूएस के डोनाल्ड ट्रंप को दिए, उसने 63 रुपीज की जगह $1 हमें दे दिया, ठीक है। अब हमें 67 रुपीज देने पड़ रहे हैं। अब मामला है करोड़ों का, 400 करोड़ का नुकसान हो गया। इसीलिए इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, टाटाज, अंबानीज, अदानीज, वो फॉरेन मार्केट में अपनी बॉन्ड्स, इंडिया में बॉन्ड मार्केट वैसे ही नहीं है। हमने देखा है पहले क्वेश्चन, इंडिया में हम बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक्स टाटास को लोन दे देंगे,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टाटा की बॉन्ड भले ही खरीद लें, हम लोग नहीं खरीदते, कॉमन पीपल डू नॉट परचेज देयर बॉन्ड्स, है ना, इसीलिए टाटा की बॉन्ड्स वगैरह ये हो जाती हैं। तो वो लोग लॉन्च ही नहीं करते थे। इंडिया में कैपिटल स्कैरसिटी है, पैसा नहीं है इतना, है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई। तो एक ऑप्शन जो था लंदन वगैरह की मार्केट से पैसे रेज करने का, यूएसए से पैसे रेज करने का, वो अनएक्सप्लॉयटेड था, दैट वाज नॉट एक्सप्लॉयटेड टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो प्रॉब्लम ये सारी जो चल रही थी उसी की वजह से, ये दिक्कतों की वजह से अब क्या लाया गया, मसाला बॉन्ड, यानी कि आप इसे यूएसए में वो कर रहे हो, ठीक है, यानी कि लॉन्च कर रहे हो यूएसए में, आप ये बोलोगे कि हम इसे रुपीज में रेज कर रहे हैं, और आपको यूएसए को पैसे रुपीज, यूएसए का सिटीजन है कोई डोनाल्ड ट्रंप, उसको आपको टाटाज को रुपीज में ही पैसे देने हैं, यानी कि टाटाज आर नाउ saved off, Indian bond issuers are now saved off this pain of raising the money, then getting it converted into rupees and then using it, and while repaying again converting the rupees into dollars and paying the prevailing currency exchange rate। उसमें नुकसान होता था ना, इससे वो बच जाते हैं। मसाला बॉन्ड्स क्यों बोला जाता है, दोनों स्पाइसेस इसमें हैं, दोनों मसालाज हैं, डॉलर का भी मसाला है, रुपी का भी मसाला है, हौच पौच किया और बन गया क्या, पैसा। समझ में आया कि मतलब दोनों मिक्स्ड हैं, इसीलिए अब जब हम काफी सारी चीजों को मिक्स कर देते तो क्या क्या बोलते हैं हम उसे, मसाला, तो इसीलिए इसको मसाला बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर। सबको क्लियर है? यस। देखो इन्वेस्टर्स भी इससे बच जाते हैं। पता है क्या होता है इसमें जो इशूइंग में जो मर्चेंट बैंकर्स वगैरह हैं, ये इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसे फैसिलिटेट करते हैं। अल्टीमेटली दे आर डेरिवेटिव्स प्रोटेक्टेड। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड्स इशू करते टाटाज वगैरह, डेरिवेटिव्स इस पे ले लिया जाता है कि रुपी हम 4 साल के बाद इतने में खरीद पाएंगे। 4 साल के बाद रुपी की वैल्यू 63 रुपीज पे पहले ही सिक्योर कर ली जाती है, किसी को नुकसान नहीं होता। ठीक है, जैसे आईएफसी है ना, तो आईएफसी इसको सिक्योर करता है। इंडियन कैपिटल मार्केट इज कैपिटल स्कार्स, हमारे यहाँ पे इतना कैपिटल नहीं है, तो अंडरलाइंग जो एंटिटीज हैं जैसे आईएफसी, उसने ये इनिशिएटिव लिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इंडियन एंटिटीज हो सकती हैं या वर्ल्ड एंटिटीज हो सकती हैं, वो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। अदरवाइज वर्ल्ड बैंक का कोई अस्तित्व नहीं रहता ना, कि क्या एग्जिस्टेंस है, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स, फाइनेंशियल थिंग, है ना, इसीलिए ये इंस्टीट्यूशंस ऐसा करती रहती हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, these bonds are issued in the denominations of grams of gold। 2016 में अरुण जेटली was the finance minister, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा जाता था दुबई कंट्रीज, है ना, दुबई, ये गल्फ कंट्रीज, दुबई एटसेट्रा की तरफ। तो पॉइंट ये होता था कि प्रॉब्लम ये होती थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ते चले जा रहा था, ठीक है, अननेसेसरीली। तो गवर्नमेंट ने ये कहा
कि तुम जिनको गोल्ड लेना है, जिनको लगता है कि गोल्ड का प्राइस आज 26,000 रुपीज है तो 32,000 हो जाएगा, वो लोग क्या करें कि वो लोग पेपर गोल्ड खरीद लें। गवर्नमेंट का स्टैंप लगा रहेगा, जब उस पर्सन को 32,000 पे गोल्ड बेचना है तो उसमें क्या होगा कि 6,000 रुपए की जो बढ़त है, जो इंक्रीज हुई है, जो अप्रिसिएशन हुई है गोल्ड की वैल्यू में, वो मिल जाएगी उसके डीमैट अकाउंट में। फिजिकल गोल्ड परचेज करने की लिमिट जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज बेयरिंग दी लॉस। गवर्नमेंट इतना ज्यादा गोल्ड बेचेगी ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, इसको और ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए इस पे इंटरेस्ट रेट तो दे दिया, ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए कि जो आप पैसा इसमें लगाओगे 26,000 रुपीज, उस पे आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट भी दिया गया 2.5%। बट इसका यही क्रिटिसिज्म हुआ कि 2.5% इंटरेस्ट आप दे रहे हो, तो जो लोग इंटरेस्ट के लालच में ये खरीदेंगे वो क्यों खरीदेंगे। 2.5% इज इवन बिलो इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला, अरुण जेटली ने, कि पीपल हु परचेज गोल्ड they are not satisfied with 6 to 7% rate of interest, they are actually buying the gold। अब ये लॉजिक भी सही था कि वो लोग इंटरेस्ट में अगर पैसा लगाएंगे तो वो तो फिक्स डिपॉजिट में लगा लेंगे, है ना। तो गोल्ड बॉन्ड स्कीम वाज अ हाइब्रिड स्कीम, इट कंबाइंड द एलिमेंट्स ऑफ अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड प्लस द इंटरेस्ट रेट। दैट वाज लाइक फ्यूचर ट्रेडिंग और ओश्री, ठीक है। जीरो रिस्क ऑफ हैंडलिंग एक्चुअल गोल्ड। लोग क्या करते हैं, ये नहीं रियलाइज करते कि गोल्ड खरीदा है, गोल्ड खरीदते हैं फिर उसके लिए लॉकर लेते हैं बैंक में, उसको रख के आएंगे, कोई चुरा के नहीं ले जाए, ठीक है। एंड दिस पेपर बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड जो थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसको आप कोलैटरल भी रख सकते हो। जैसे मुथूट फाइनेंस पे लोग जाते हैं, अपना गोल्ड गिरवी रखते हैं, लोन लेते हैं, है ना। यहां पे इसको कोलैटरल भी रखा जा सकता है। बॉन्ड का टेन्योर कितना था, 8 years विद एन एग्जिट ऑप्शन। 5 साल से पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। ये इसके क्रिटिसिज्म माने गए कि अगर मैं गोल्ड लेता हूं, फिजिकल गोल्ड, मैं 5 महीने बाद, 5 दिन बाद बेच सकता हूं। इसको अगर ले लिया तो 8 साल में 5 साल, 6वें साल, 7वें साल ही आप पैसा निकाल सकते हो। अरुण जेटली से ये पूछा गया कि हो सकता है उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस 80,000 रुपीज हो गया, तो आप कैसे पे करोगे 5वें साल में, है ना। उन्होंने बोला कि सॉवरेन गारंटी हम दे रहे हैं, सरकार की गारंटी है, और हम इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। नेशनल कैपिटल है, इंडिया का सेविंग्स रेट बहुत अच्छा है, लेकिन वो सेविंग कहां इन्वेस्ट हो जाती है, फिक्टिशियस एसेट, गोल्ड में, फालतू में, है ना। जबकि और कंट्रीज में क्या होता है, पत्थर के क्रिस्टल वगैरह बना के पेंडोरा और ये सब बेचे जाते हैं, समझ रहे हो ना बात को। वहां पे लोग तरक्की कर रहे हैं, कुछ खरीद बेच रहे हैं, टैक्स मिल रहा है सरकार को। यहां पे उस पैसे को येलो मेटल में दबा के रख दिया, डंप कर दिया। दिस इज लाइक अ पीस ऑफ पेपर, मतलब हमने रुपये के 2-2 हजार के नोट है, गद्दे के नीचे दबा के रख दिए, वो कोई पैसे थोड़ी ग्रो करेंगे। मनी सर्कुलेशन लीड्स टू ग्रोथ इन द इकोनॉमी, विच इज व्हाट वाज नॉट हैपनिंग इन दिस केस। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से मतलब एक अच्छा ऑप्शन निकला कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि गोल्ड इंपोर्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा होता था, उसको कंट्रोल किया जा सके। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीवन। हाउ आर दी बॉन्ड्स डिफरेंट फ्रॉम डिबेंचर्स, ये छोड़ दो अभी के लिए, ये ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये भी हो गया। बॉन्ड्स आर सिक्योर इन नेचर, डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड। डिबेंचर्स में दोनों चीजें रहती हैं, बाकी के पॉइंट सिंपल है, ठीक है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, इसको मतलब मैं इसको ना डेलिबरेटली स्किप करता हूं, इस कोई काम का नहीं है ये टॉपिक। इसमें आधा 1 घंटा लगाओ, फिर क्वेश्चंस आते नहीं है, और दिस इज लाइक मतलब फिर स्टूडेंट्स भी इसमें ना घुसते चले जाते हैं, फिर निकलते नहीं हो तुम लोग भी।
तो ये सारा कुछ है। पी नोट्स, यस, ये गाइस ये टॉपिक हम समझेंगे। एक बार मुझे सेबी वगैरह सारा समझाने दो, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन दिस। पी नोट्स, जस्ट रिमेंबर वी नीड टू सी दिस टॉपिक। अभी देख लेते हैं। वैसे पी नोट्स क्या है, जब, चलो मैं इसको बाद में ही समझाऊंगा, इसको आई विल एक्सप्लेन यू विद एक बहुत अच्छे से पीपीटी मैंने कंपाइल करी हुई है, उसमें ये समझेंगे। सेबी हैज़ गिवन, ठीक है, तो 2020 तक का टाइम दिया जा रहा है ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को, कि आप पी नोट्स में देखो। इसमें पता क्या होता है, ब्रीफली बता देता हूँ, नाउ दैट योर क्यूरियोसिटी मस्ट बी इंक्रीजिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन रजिस्टर्ड, ये सेबी है, सेबी के साथ जो फॉरेन, ये यूएसए है या कहीं और, ठीक है, इसके साथ जो हमारे यहाँ पे जैसे क्वालिफाइड या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी के साथ सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड है। अब केमैन आइलैंड्स में या कहीं और, ठीक है, हमारे यहाँ के लोग, इंडियन एनआरआईज, वो पैसा लगाते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इनकी पूरी डिटेल रहती है कि इनका नाम अंबानी है, ये अमिताभ बच्चन है, अभिषेक बच्चन का भी फर्जी अकाउंट खुल रखा है, राहुल गांधी का भी खुल रखा है, ठीक है, लेकिन इनकी डिटेल सेबी के पास नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ इसके साथ डील कर रहे हैं। इसका नंबर मिला हुआ है एफ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेबी के साथ में रजिस्टर करता है, और जो रजिस्टर्ड है उसको इंडियन डिपॉजिटरी, इसको फॉरेन डिपॉजिटरी भी बोलते हैं। डिपॉजिटरी मतलब जो जनता के पैसे डीमैट अकाउंट वगैरह हैंडल कर रहा है, ठीक है। इंडियन डिपॉजिटरीज क्या करते हैं, ये 10,000 के शेयर्स परचेज करते हैं, जैसे रिलायंस के, और ये 10,000 करोड़ के, ठीक है, इन्होंने रिलायंस का शेयर परचेज किया, अंबानी का, टाटा का, ये सारे, ठीक है। अब ये शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इशू करते हैं, इनके पास में ये एक 10,000 करोड़ का बंडल ऑफ शेयर्स है। वो बंडल ऑफ शेयर्स में 10%, 20%, 30%, जैसे हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड है ना, अगर मैं इतने बड़े म्यूचुअल फंड का 10% खरीद लूं, कितनी बड़ी बात है। तो हमारे ही इंडिविजुअल्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये बोला जाता है कि इंडिया से ही पैसा राउंड ट्रिपिंग में जाता है, क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और ये सब। तो ये लोग यहाँ पे यूएसए में नहीं, केमैन आइलैंड्स में, पनामा कैनाल में जाके फर्जी कंपनी बनाते हैं, जिसे शेल कंपनी बोला जाता है। जगन मोहन रेड्डी की भी ऐसी कंपनीज हैं, और फिर यही पैसा इंडिया में स्टॉक मार्केट में लग जाता है। इनकी आइडेंटिटी हिडन रहती है, ठीक है। अब चल क्या रहा है न्यूज में, देखो, P notes are used by foreign entities who want to get an exposure to Indian equity without getting registered with SEBI. SEBI के पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया, आइडेंटिटी भी नहीं है। SEBI registered foreign portfolio investors और institutional investors buy the shares on behalf of such entities. कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो इंडिया के ही लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, 30,000 करोड़ लगा दिए उसमें, तो एंड देन ट्रांसफर दी सिक्योरिटीज टू एक्चुअल बेनिफिशियरीज। लेकिन सेबी और इंडियन अथॉरिटीज डू नॉट गेट द डिटेल्स ऑफ these entities. Recently, SEBI has released a consultation paper on P notes, planning to further tighten the norms for issuance of offshore derivative instruments और P notes. यानी कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को P notes क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स, they are participating in the Indian market and then they get a kind of paper proof for it that they have purchased these many shares in the Indian market. All right. प्रूफ मिल जाता है कि उन्होंने इतने शेयर्स परचेज करे हैं। SEBI has proposed to levy a regulatory fee of $1,000 on every foreign portfolio investor. SEBI ने ये कहा है कि ठीक है, तुम अगर ये कहते हो कि इंडिया से इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा, हम तुम्हारे ऊपर भी फी लगा देते हैं। अब वो फी लगी तो क्या हुआ, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स वाली जो FPIs थी, FIIs थी, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ कर लिया। जैसे ही उन्होंने पैसा विड्रॉ किया, सेंसेक्स टैंक्स 1000 पॉइंट्स इन अ सिंगल डे।
तो गवर्नमेंट का सेबी को फोन जाता है, तुम भाड़ में जाओ, रेगुलेशंस गई तुम्हारी तेल लेने, सेंसेक्स गिरेगा तो फाइनेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट कार्ड एडवर्स मानी जाती है, वो तो वैसे ही एडवर्स है, तो चलो बबल तो क्रिएट होने दो, ये सब मत करो। सो पी नोट्स आर अ नेसेसरी इविल, ठीक है। दिस फी वुड हैव टू बी पेड बाय सेबी रजिस्टर्ड एफपीआईज वंस एवरी 3 years। तो इक्वलेंट टू इंडियन टैक्स लाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है, कि हमारा पैसा विदेश में जाएगा, फिर वहां से इंडिया में रजिस्टर्ड होगा, तो टैक्स जो बचेगा वो टैक्स ऐसे नहीं तो इनकी रेगुलेटरी फी वगैरह बढ़ा के ले लो। अब जब हम इनसे फी लेंगे, जैसे कि अगर हम इंडियन म्यूचुअल फंड से फी बढ़ा दें तो म्यूचुअल फंड किससे लेगा एंट्री लोड? इन्वेस्टर से। वैसे ही ये भी इंडिया के फॉरेन एंटिटीज से लेंगे, है ना, जो लोग जानबूझ के वहां पे कंपनी बनाते हैं। तो द रेगुलेटर हैज ऑल्सो प्रपोज टू प्रोहिबिट ओडीआईज फ्रॉम बीइंग इशूड अगेंस्ट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के अराउंड जो स्पेकुलेशन होती है, जिनको समझ में आ गया है थोड़ा बहुत, तो सेबी ने ये कहा है कि ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को, एंटिटीज को डेरिवेटिव्स के खिलाफ इशू करने की इजाजत ना दी जाए, ताकि ये लोग मुनाफाखोरी के चलते शेयर्स को और खरीदेंगे, शेयर्स बढ़ेंगे, तो शेयर्स बढ़ने लगते हैं तो इंडियंस बेवकूफ हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको लगता है शेयर का प्राइस एक दिन में 100 से 110 हो गया, इंडियन सोचते हैं 110 से 120 होगा। जैसे ही इंडियन शेयर खरीदते हैं तो वो अपना मुनाफा 100 से 110 वाला फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ करके अपनी कंट्री में वापस चले जाते हैं, ठीक है। जो रैली मैंने बताई थी ना कि एक रैली शुरू हो जाती है, राइजिंग रैली की, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इट विल बी इनकम्बेंट ऑन एफपीआई टू इंश्योर दैट ऑफशोर derivative instrument is issued against derivatives which are purely for hedging purpose and not for speculation। तो इनको रेगुलेट करना has been like tough nut for SEBI to crack। मतलब बार बार सेबी इनको रेगुलेट करती है, सेंसेक्स गिर जाता है तो गवर्नमेंट बोलती है कि व्हाई आर यू टिंकरिंग विद इट, है ना। तो होगा क्या कि जब अल्टीमेटली इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, टैक्स रेट कम हो जाएगा, बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, तो ये चीजें अपने आप सुधरने लगेंगी, तो फिर लोग इंडिया में ही रहेंगे और सही रूट से पैसा लगाने लगेंगे, ठीक है। एफपीआईज और मनी राउंड ट्रिपिंग और ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वैप हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सारा कुछ खुद पढ़ोगे, आगे इसको डील करेंगे हम, वैसे तो ये सारा थोड़ा हो चुका है पहले से। प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू, जिनके पास एक शेयर होता है उनको 2 और मिल जाते हैं। ऑफर फॉर सेल, सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू पब्लिक बट आर ऑफर्ड टू सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेज, स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एटसेट्रा, EIPO एटसेट्रा, ठीक है गाइस। अभी इसकी पीपीटी शायद खत्म ही है। कल से स्टार्ट करेंगे बैंकिंग, ऑलराइट। फाइनेंशियल मार्केट्स एज अ टॉपिक इज ओवर, रेगुलेशन वगैरह कुछ टॉपिक्स में कुछ ज़्यादा है नहीं अभी के लिए। थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन इसका पढ़ लेना, इसको डायनामिक वे में लास्ट में कवर करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 30 कंपनीज लिस्टेड हैं इसमें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, राइट। निफ्टी है इनका, NSE का जो बैरोमीटर है वो निफ्टी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन निफ्टी टॉप 50 शेयर्स हैं इसमें, ठीक है। ओवर द काउंटर ये कितने भी हो सकते हैं, रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, फिर ये सब। सो दिस वाज ऑल। एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग क्या हैं, हाउएवर देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस, ये भी पता होनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ें हैं बहुत ही। अब इतने सारे सेंसेक्स ये और बन गया है, 500 टॉप शेयर्स का ये सब है ना, बुल और बेयर, ये भी हमने देख लिया था, ऑलराइट। स्टैग क्या होता है, मैंने ये बताया था। स्टैग इज जो कि न्यू इशू मार्केट में IPO में पैसा लगाता है, क्योंकि IPO में सेबी एक रिजर्व प्राइस रखता है और सबको लगता है कि इसका प्राइस IPO का जब IPO ओपन होगा तो इससे ऊपर जाएगा, इसलिए लोग उसको परचेज करते हैं। क्या भारत 22 ETF के बारे में भी आई हैड एक्सप्लेन्ड, राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका टेस्ट अच्छे से बनवाएंगे। आई विल सेंड अक्रॉस दी PPT, थोड़ा सा करंट एंगल भी इसमें ऐड हो जाएगा। कंटेंट राइटर को मैं PPT सेंड कर दूंगा एंड दे विल कंपाइल द क्वेश्चंस। ये कोई ना क्वेश्चन इन एरिया से आते नहीं है,
इसीलिए आई एम थिंकिंग कि ये सारा कुछ ज़रूरी नहीं है. नई नई करंट अफेयर्स हमने ऐड करें. Unlisted companies to issue new shares in demat form so as to avoid any fraud or any fraudulent activity around it. ठीक है. कॉपर में भी आप डेरिवेटिव्स परचेज कर सकते हो. ये आइडिया लगा लें, जो चीज़ें हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना वो थोड़ा सा इसमें है. MCX क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया. इंडियाज फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज इज अ स्टेट ऑफ आर्ट कमोडिटी डेरिवेटिव. कमोडिटीज में एक्सचेंज के लिए ये बना हुआ है. फाइनेंशियल मार्केट में ना ये इनसे क्वेश्चंस नहीं आते. क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म, मेक इन इंडिया, ठीक है, और RBI की रेगुलेशंस फॉर बैंकिंग, वो सारा कुछ आता है. सेबी के, क्योंकि UPSC ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इट्स एन एग्जाम वेयर दे हैव टू मेंटेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर पीपल हु आर नॉट सो अवेयर. प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं एंड अनलेस यू क्रैक प्रीलिम्स यू वुड नॉट बी एबल टू राइट मेंस. दैट इज द रीजन दैट वी आर कवरिंग इट. मेंस में कुछ ज़्यादा यही आते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डेवलप क्यों नहीं हो रही, मार्केट क्यों नहीं डेवलप हो रही, सिक्योरिटीज़ बॉन्ड मार्केट क्यों डेवलप नहीं हो रही, ये सब क्वेश्चंस आते हैं. ग्रीन बॉन्ड्स क्या होती हैं उस पर लिखने में आ गया. तो करंट अफेयर से आता है इसमें, मतलब जो अभी हैपनिंग चीज़ें चल रही होती हैं. बट इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दी हैपनिंग थिंग्स, दी रीसेंट थिंग्स, वी नीड टू हैव अ सॉलिड बेस, आई थिंक विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हो गई, मसाला बॉन्ड्स हो गई, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे क्वेश्चन आ चुका है. बट उनको समझने के लिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल. थैंक यू गाइस. See you at 8:30. And then today you will be having the first discussion class on PT Master Test Series as well. All right. Thank you.